Hello students, this is Salma Aftab standing in front of you, and today we are going to start our new chapter for the class 10, that is periodic table, periodic properties and the variations in their properties. So student, I hope you all are enjoying your online classes. Okay, now we are going to start our topic, that is periodic table. Okay. First of all, just try to understand that what is the need of the classification. Need of the classification. क्यों classification करने की जरूरत पड़ी? Actually, in the late 18th century and the early 19th century, okay, 18th के last वाले century, 18th के last के date में century के और 19th के starting में lots of elements were started to discover. Lots of elements started to discover, and due to the discovery of these elements, बहुत सारी discoveries होना शुरू हो गई थी. बहुत ज्यादा elements की properties भी start हो गई थी. उसकी discovery की what are their properties? What are their properties? And later on, a confusion created. And later on, the scientists started, they want to study the relationship between the elements and their properties. They wanted a comparison between their properties, between the two elements. एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में वो कंपैरिजन चाह रहे थे. उसकी एक पूरी डिटेल चाह रहे थे कि हम अगर एक एलिमेंट को अगर हम देखें, वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट ऑल्सो. पूरी डेटा एक जगह हमें मिल जाए. दैट्स वाई दे स्टार्टेड टू रिसर्च, और दैट्स वाई वो क्लासिफिकेशन की तरफ आए. और क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट अब हम इसमें पॉइंट पे आ जाएंगे, द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. एक्चुअली पीरियोडिक टेबल के पहले क्यों पीरियोडिक टेबल आया, क्यों क्लासिफिकेशन हुई, उसके लिए, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के पहले हम इसको पढ़ेंगे. ओके बेटा, ऑलवेज ट्राई टू स्टडी विद द बेस. अगर बेस अगर स्ट्रांग हो गया ना, तो बिल्डिंग तो अपने आप खड़ी हो जाएगी बेटा. ओके, so try to understand the basic. ठीक है, need of classification. So the first point कि it will make the study easier. Okay, it helps to study the elements in an organized manner. First point will be it helps to study the elements in an organized manner. ठीक है. एंड सेकेंड क्या होगी इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड बेनिफिट, सेकेंड क्लासिफिकेशन. एंड द सेकेंड क्लासिफिकेशन विल बी इट हेल्प्स टू correlate the properties of the elements. It helps to correlate the properties of the element with the fundamental properties of all states of matter. किसी की एलिमेंट की अगर हमें फंडामेंटल प्रॉपर्टीज अगर पता है, तो वी कैन इजिली कोरिलेट देयर प्रॉपर्टीज. ओके, एंड इट हेल्प्स to correlate the properties of the elements with the fundamental properties of matter.
फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड ठीक है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को हम इजीली रिलेट कर पाएंगे मैटर से, मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज से। एंड थर्ड वन, इट हेल्प्स टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द, it helps to define or the comparison between the two elements. Okay, relationship between the two elements, दो एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है वो हम जान सकेंगे अगर हमें पता चल जाएगा एक क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो दीज आर द बेनिफिट्स, इसी की वजह से क्लासिफिकेशन की गई कि इजी वे में स्टडी की जा सके एलिमेंट्स की। और अब तक इस टाइम तक ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी की जा चुकी थी। ठीक है, अब तो पहली जो क्लासिफिकेशन आई एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मॉडर्न प्रेडिक्टेबल नहीं आ गया। ओके, सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन आई थी दैट इज डॉबरेनर क्लासिफिकेशन। डॉबरेनर क्लासिफिकेशन Dobereiner classification. Actually, Dobereiner was a German scientist. Dobereiner classification. He was a German scientist and he given the law of triads. उन्होंने कौन सा लॉ दिया? He gives the law of triads. Law of triads. And according to his law, he just picked three elements. And then he just took the average of first and second element. And the result, he just add the atomic masses of first and third element. Okay, are you getting my point, student? He given the law of triads, and according to the law of triads, the atomic masses of first and third element. Let us take an example तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लिथियम, देन सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम की एटॉमिक मास is 7, sodium 23 and potassium is 39. Okay, clear? Now the atomic mass I have written lithium, sodium, potassium, and then he just took the average of their atomic masses. ठीक है, एटॉमिक मासेस का एवरेज किया इन्होंने, इसका और इसका। 7 plus 39 divided by 2, that is 9 7 16, 3 7 3 10, 1 11. 9 7 16 and 3 1 4 46 divided by 2. This one is 23, and this is the exact mass of atomic mass of the sodium, and this is the law of triads. यही था law of triads. But इसकी डिमेरिट्स कुछ हो गई। इसकी डिमेरिट्स ये हो गई कि ये this law does not applicable to all the elements. ये law सब पर applicable नहीं हो पाया। That's why after some time this law is discarded. इस law को discard कर दिया गया। And then the second law came,
and the second law is your law of octaves, which was given by Newland. ठीक है, न्यूलैंड के अकॉर्डिंग क्या था कि उन्होंने ऐसे एलिमेंट इस तरीके से, अब कुछ 63 एलिमेंट जो उनके पास थे कुछ इस तरीके से अरेंज किया था. ही जस्ट अरेंज इन सच ए वे. ऑक्टेव्स मीन्स होता ही है द नेम itself suggesting its meaning, that is your 8. ठीक है, तो उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था और उस लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि एलिमेंट्स को ही जस्ट अरेंज इन सच ए वे दैट एवरी 8 एलिमेंट इज द रिपीटेशन. एवरी 8 एलिमेंट इज द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. आई मीन टू से कि फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो 8 एलिमेंट से सेम हो रही है, मिल रही है कहीं ना कहीं. जैसे उन्होंने कौन सा कैसे अरेंज किया था? लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ये दिस वन. जस्ट काउंट द नंबर और हर एक एलिमेंट अपने फर्स्ट वाले एलिमेंट को प्रॉपर्टी से मैच करा. सब लिथियम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड दिस वन इज द 8th एलिमेंट. तो सो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या थी? दैट इज योर मेटल and it has only one electron in its outermost shell. In the same way, fluorine or chlorine and fluorine, they both are halogen and they are in need of one electron because in its outermost shell, both the electron has 7 electrons in its outermost shell and in these elements they have only one electron in its outermost shell. तो ये उन्होंने यहां पे न्यूलैंड ने जो प्रॉपर्टी दी थी, लॉ दिया था, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल कर आई कि एलिमेंट्स में सिमिलैरिटीज हम डिटरमाइन कर सकते हैं. वी कैन इजीली डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज, इन देयर फिजिकल और इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. सो लेकिन ये भी सारे एलिमेंट्स पे फॉलो नहीं कर रहा था. लेटर ऑन जितनी डिस्कवर और 63 एलिमेंट्स के बाद और भी जो डिस्कवरीज हुई एलिमेंट्स में, वो क्या हो गई, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी. दैट्स व्हाई आफ्टर देन दिस लॉ इज ऑल्सो डिस्कार्डेड. ओके, ये तो हो गई लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अब यहां पर हम लोग की आई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जिसको कि हम लोग लॉथरमियर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत ज्यादा बेटा ये इंपॉर्टेंट है ये टेबल. ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. इसके साथ साथ एक्चुअली में लॉथरमियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक्चुअली दोनों साइंटिस्ट ने सेम चीजें ही दी थी. ठीक है, लॉथरमियर भी ने भी, बस लॉथरमियर का फर्क ये था कि उन्होंने दिया था इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. उन्होंने जो टेबल दिया था, द टेबल गिवन बाय लॉथरमियर वाज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. ओके, और इन्होंने मेंडलीव ने जो दिया था, जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, दैट इज एक पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में दिया था. तो इस वजह से इनकी टेबल को एक्सेप्ट कर लिया गया और इनकी ग्राफ को एक साइड में माना गया. इन्होंने भी बहुत अच्छा दिया था, बट वो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ था. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
Actually, modern periodic table, that was a awesome periodic table. जो बेस उन्होंने दिया था ना मेंडलीव ने इट्स, यू कैन से दैट कि उन्होंने एक बेस दे दिया था. बिल्डिंग की जब बेस खड़ी हो जाती है ना, बेस मतलब पूरी की पूरी एक बिल्डिंग का उन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया था. एंड दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट एरा ऑफ द केमिस्ट्री. ठीक है, इम्पॉर्टेंट एरा. एंड अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव लॉ वी कैन से, according to the Mendeleev law, he just arranged the elements according to the atomic weight, increasing atomic weight. He just arranged the element according to the increasing order of atomic mass और atomic weight. ठीक है, उन्होंने इस तरीके से पीरियोडिक टेबल दिया कि एलिमेंट्स को वो उनके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे उसके मास बढ़ते गए उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो रख दिया. सपोज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम. ठीक है, ये इस फॉर्म में उन्होंने पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट कर दिया. एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू हिज लॉ, द प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव लॉ. ये लॉ के अकॉर्डिंग था. उन्होंने उस लॉ में ये कहा था द प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस. ये प्रॉपर्टीज कौन सी? फिजिकल आइदर और केमिकल. ये फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है. ये प्रॉपर्टी जो है वो द फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस. इट मीन्स द प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस. एंड दिस वाज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. और मेंडलीव के अकॉर्डिंग ही जस्ट गिवन द 7 पीरियड्स. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में और वर्टिकल के फॉर्म में उनकी तो थोड़ी शॉर्टकमिंग्स थी, वो जो कि बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में आई. ठीक है, लेकिन मेंडलीव ने जो लॉ दे दिया था वो लॉ कोई नहीं दे पाए थे. एंड ही वाज सच एन इंटेलिजेंट गाय, इंटेलिजेंट पर्सन. इतने ज्यादा वो इंटेलिजेंट थे मेंडलीव की, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं भी हुए थे, जो एलिमेंट डिस्कवर में नहीं आए थे, क्योंकि इस टाइम तक सिर्फ 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे. जो एलिमेंट डिस्कवरी नहीं हुए थे वो एलिमेंट्स का भी वो स्पेस छोड़ चुके थे. एंड सम ऑफ द एलिमेंट ही जस्ट गिवन द नेम ऑल्सो. एंड सम ऑफ द एलिमेंट्स की वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बता दिए थे. ये उनकी स्पेशलिटी थी. किसकी? मेंडलीव की. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक बिल्डिंग बना के दे दिया. बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज जस्ट एन एडवांसमेंट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ठीक है, मेंडलीव ने जो स्ट्रक्चर दिया बिल्डिंग का, उसके बाद में उन्होंने उसको डेकोरेशन, अच्छे से क्लैरिफिकेशन, थोड़ी सी जैसे घर में पेंटिंग वेंटिंग कर देते, उसकी हाईलाइट कर देते हैं. ठीक है, फिनिशिंग कर देते हैं. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वही है किसका? मेंडलीव का. ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा स्टूडेंट्स, बच्चों, जो हमने पढ़ाया है. ओके, सो एंजॉय योर ऑनलाइन क्लास. ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो. टिल देन जस्ट रिवाइज योर लेसन्स. ठीक है, सो स्टे सेफ एंड स्टे होम. अल्लाह हाफिज.